फर्नीचर पे 10% depreciation. There are two accounts as far as depreciation is concerned. One is depreciation, another is furniture. Depreciation expense debit, furniture will reduce, value of furniture will decrease by 10%. 10% of the 1 lakh, 10,000. Next, goods used in making furniture, selling price 5,000, cost is 4,000. When any goods is used to given in charity, free sample, drawings, always you have to record at cost price. Always we have to use cost price. हमेशा cost price पर एंट्री करें. What has given? Goods used in making furniture. कल क्या था अपने फिल्म वाला क्वेश्चन. Now there are two accounts. One is furniture, another is purchase. Increase in the value of furniture, furniture account debit. It will decrease our cost of purchase when to purchase at cost price. What has given cost price? 4,000. Always you have to enter at cost price. Next, received commission 20,000 by check, half of which is in advance. सबसे पहले दो एंट्री कर. Commission received by check. One account is bank because it has received by check. Bank is receiver, bank account debit. Commission our income. Commission. What we have received? 20,000. समझना यहाँ पर. 20,000 commission received. Out of it, half commission is received in advance. अब इसमें से आधा कमीशन अगले साल का है. Any commission which has been received in current year, but work is to be completed in next year, it is called advance commission, or we can say it is unearned commission. Then, what is the adjustment entry? First, half commission is to be cancelled. Earlier, we have credited commission because it was our income rupees 20,000. ये 20,000 रुपये अपन को मिला, अपन ने इनकम मान के इसको क्रेडिट कर. अब इसमें से आधी इनकम को कैंसिल करना है, तो वहां पर डेबिट करो. तो आधी कमीशन डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, आधा अमाउंट हो गया 10,000. और ये कमीशन नेक्स्ट ईयर का है. आइदर वी हैव टू कंप्लीट द वर्क इन नेक्स्ट ईयर और वी हैव टू रिफंड. या तो अपन को ये 10,000 रुपये का काम पूरा करना पड़ेगा रिमेनिंग, और अगर पूरा नहीं किया तो ये अमाउंट वापस देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा तो अपने लिए लायबिलिटीज. यहाँ पर आ जाएगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनर्न्ड कमीशन. अनर्न्ड कमीशन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. इट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. 10,000 कंप्लीट करो पहले. जल्दी गरम करो.
हो गया। नेक्स्ट, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 लिखाया था मैंने। allowed interest on capital, there are two accounts, interest on capital and interest on capital is nominal expense, should be debited, not yet paid to the proprietor. This time proprietor is giver of his services, वो अपनी सर्विसेज का गिवर है, गिवर है तो proprietor को क्रेडिट, and due to interest on capital, capital will increase and modern rule says increase in capital should be credited. अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 8,000। Interest on drawing, that is our income for the business, and proprietor is now debtor. This amount is to be received from the drawing from the proprietor. Due to interest on drawing, drawings will increase, means debit. Drawings account debit and interest on drawing our income. Amount rupees 1,500 per then. हो गया? ओके, अब आता है नेक्स्ट ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। Write down about the opening entries. Opening entry. Write down at the end of an accounting year. At the end of an accounting year, all the nominal accounts are transferred. All the nominal accounts are transferred to the trading account or profit and loss account. Trading, TRADING, trading and profit and loss account. Trading and
profit and loss account. But balances of personal and real account are not dissolved, are not closed. Dissolved की जगह लिख लो, are not closed. So these are shown in balance sheet. These are shown in balance sheet. These are shown in balance sheet. In the beginning of next accounting year, balances of all the assets, liabilities and capitals are brought down in new books. समझना पहले यहाँ पर 3 तरह के अकाउंट पढ़े अपन ने, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ऑल द बैलेंसेस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, जिनको भी अपन ने मानते हैं कि वो नॉमिनल है, जिनकी एंट्री अपन ने नॉमिनल अकाउंट के बेस पे की है, वो अकाउंट तो सारे ट्रांसफर हो जाते हैं एंड ऑफ द ईयर, या तो ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि उनकी लाइफ होती है केवल एक अकाउंटिंग ईयर, 12 महीने तक। उनकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा नहीं होती, यानी एक तरह से उनकी दौड़ खत्म हो जाती है और वो 31 मार्च को या तो ट्रेडिंग में जाके खत्म हो जाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस में जाके खत्म हो जाते हैं। पर दूसरे जो 2 अकाउंट होते हैं, पर्सनल और रियल, अब जो पर्सनल और रियल होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सारी असेट्स होती है, लायबिलिटीज होती है, कैपिटल होती है। कैपिटल पर्सनल होती है, असेट्स में भी बहुत सारी असेट्स होती है जो पर्सनल होती है, जैसे डेटर्स का अकाउंट असेट्स होती है। बाकी अपने रियल अकाउंट होते हैं जिसमें और असेट्स कौन कौन सी होती है, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, ठीक है, और लायबिलिटीज, तो ये सब पर्सनल या रियल अकाउंट होते हैं। देन ऑल द बैलेंस ऑफ पर्सनल रियल अकाउंट आर शोन इन बैलेंस शीट, वो हम बैलेंस शीट में एंड ऑफ द ईयर में शो करते हैं। पर बैलेंस शीट में शो करने का मतलब होता है कि ये अकाउंट खत्म नहीं हुए, ये अकाउंट एक साल से दूसरे साल में ट्रांसफर होते हैं। जैसे अगर हमारी शॉप पे एक सोफा सेट पड़ा है 20,000 रुपए का, ठीक है, या 50,000 रुपए, तो वो 31 मार्च को भी वहीं रहेगा और अगले दिन 1 अप्रैल को भी वहीं रहेगा। पर बिजली का बिल हर महीने जमा कराना पड़ता है, जमा कराते उसकी लाइफ खत्म, और हम 31 मार्च तक का जो बिजली का बिल है वो उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं, जिससे हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है उसके अकाउंट अपन 1 साल से दूसरे साल में ट्रांसफर करते हैं। तो अपन ने तो बैलेंस शीट में शो कर दिया, अब अगले साल इन्हीं सारे बैलेंसेस को वापस अपनी नई बुक में, नए रजिस्टर में लिखना होता है। उसको लिखने को अपन कहते हैं ओपनिंग एंट्री। यानी ओपनिंग एंट्री का मतलब जो पिछले साल की बैलेंस शीट में शो किया था उन सारे अकाउंट्स को वापस नई बुक में लेकर आना होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये कहलाती है ओपनिंग एंट्री। अब ओपनिंग एंट्री क्या होती है, सारी एसेट्स को डेबिट करना होता है। ऑल एसेट्स अकाउंट आर डेबिटेड, लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसलिए हम लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल को भी क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो जाती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। ये लिखो जल्दी से, assets account debit to liabilities to capital। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है असेट्स, लायबिलिटीज, और कह रहा है ओपनिंग एंट्री करो।
1 अप्रैल को जो जो बैलेंस दे रखा है सारे असेट्स को डेबिट करो। तो जो जो असेट्स को दे रखा है सबको डेबिट। तो पहले करेंगे कैश दे रखा है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट यानी XYZ सबको मिला था। तो नाम लिखो इंडिविजुअल, X अकाउंट डेबिट, Y अकाउंट डेबिट, Z अकाउंट डेबिट, ये सारे डेटर्स हैं। और लायबिलिटीज को क्रेडिट, लोन फ्रॉम विकास टू लोन फ्रॉम विकास टू क्रेडिटर ए बी टू ए टू बी, और लास्ट में आएगा टू कैपिटल। अगर नहीं दे रखा है तो इस सब के टोटल को लेस करो, बैलेंस आ जाएगा कैपिटल। पढ़ा अपन ने पहले अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। अब क्या क्या दे रखा है, 60 40 150, 60 40 150, फर्नीचर 43 और XYZ 35 50 60। लोन फ्रॉम विकास 60, AB 22 530,000। अब कैपिटल का बैलेंस निकालो, बैलेंसिंग फिगर टोटल करो पहले। 1 लाख 250 250, 3 लाख 95 3 लाख 95, 98 4 लाख 250, 3 लाख 95, 4 लाख 38,000। तो डेबिट का टोटल है 4 लाख 38, यहाँ का लेस करो 60 30 90, 1 लाख 12,500, 3,25,500। तो कैपिटल 3,25,000। देखो एक बार क्लियर है क्या? पहले पहले तो ये एंट्री है ओपनिंग एंट्री, assets account debit, all assets are to be debited, liabilities and capital are to be credited. करो।
भाई हो गया? Yes. Now, anything which you want to ask regarding transaction of goods, goods in which goods given in charity, goods distributed as free sample, goods taken over by proprietor for personal use, goods destroyed by any accident. These were the entries of goods. Now, adjustment entries. Adjustment entries means either outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, unearned income, depreciation, interest on capital, interest on profits. Then, opening journal entries. Opening journal entry means all the balances of assets, liabilities, and capital are brought down in the new year which commences on April 1st. पिछले साल के बैलेंसेस को इस साल वापस अपनी बुक्स में लेकर आना होता है. दिस टाइप ऑफ बैलेंसेस आर पर्सनल एंड रियल. क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे इससे. ये एक बार सब पढ़ के आना ताकि अपन आगे क्वेश्चन कर पाए, नहीं तो मुश्किल हो. ओके.